So let's move on to the next problem. So solution, fifth वाले का. So what we do, we consider the given equation, write down and check with your steps. So consider x raised to p into y raised to q is equal to x plus y raised to p plus q. अभी इस एग्जांपल में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करने वाले हैं. We are going to take log on both the sides of equality and simplify the given expression. अब वो प्रॉब्लम का वर्किंग रूल ही ऐसा है, ठीक है. So therefore, चलो taking log on both the sides, so what will this become? Log of x raised to p into y raised to q is equal to log of x plus y raised to p plus q. So what will this become? This is going to become, ये हो जाएगा p log x into gets converted to plus, this is going to become q log y, and this is going to become nothing but p plus q into log of x plus y. ऐसा हो जाएगा ये. अभी ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पे मैंने स्टेप स्किप किया है, बट इतने लॉज ऑफ लॉगरिथम तो हमें आते हैं और आनी चाहिए. तो पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, फिर एक्सपोनेंट, वन स्टेप आई हैव रिटन इट डायरेक्टली. Now we are going to differentiate this with respect to x. Okay, so please write down on the next line, differentiating with respect to x. So on both the sides of equality operator आएगा. So therefore, okay, now on the left hand side plus है बीच में, तो लिखो p into d by dx of log x plus q into d by dx of log y. देखो यहाँ पे u plus v रूल. अब इसमें p कांस्टेंट है तो बाहर आ गया ऑपरेटर के, q कांस्टेंट है तो ऑपरेटर के बाहर आ गया. सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड p plus q into d by dx of log of x plus y. One second. It is nothing but log of x plus y. Obviously differentiate करेंगे तो हमें ये स्टेप मिलने वाला है. Now what is going to happen? P remaining same. Now what is derivative of log x? So we all know it is nothing but 1 by x. So p into 1 by x, so p by x हो गया, plus q remaining same. What is d by dx of log y? So it is 1 by y into dy by dx. Absolutely, very good. 1 by y into dy by dx. But क्योंकि उसको q multiplied है तो मैंने वो q by y लिख दिया. And similarly p plus q remaining same, log of x plus y का डेरिवेटिव मिलेगा 1 upon x plus y into d by dx of x plus y. कंपोजिट फंक्शन है. log fx is 1 upon fx into f dash of x. है ना, इतना डायरेक्टली अभी हमें समझ में आ जाना चाहिए. दैट स्टेज has come now. We should be able to understand this much directly. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इतना, ठीक है. Now what we do, we have to take derivative of x plus y. तो देखो क्या मिलेगा, therefore p by x, ठीक है, I hope it is visible. Yeah, p by x plus q by y dy by dx remaining same. This is equal to p plus q upon x plus y, और x का डेरिवेटिव 1 and y का डेरिवेटिव with respect to x, so that is dy by dx. Close the bracket. ठीक है ना, सिंपल सा रूल है ये. d by dx दोनों को स्प्लिट हो जाता है. This is how we get this. Now what we do, we have to bring all the terms containing dy by dx on one side. तो उसके पहले
ये p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई वाला जो ब्रैकेट है ना, सॉरी, ये हमें ओपन करना पड़ेगा. वी नीड टू ओपन अप द ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड. तो देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड रिमेनिंग सेम, x प्लस क्यू बाय वाई into dy by dx equal to, now just let me come on this side. ये ऐसा मिलेगा हमें. देखो लेफ्ट हैंड साइड रिमेनिंग सेम, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, चेकआउट, p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 है, तो ऐसे का ऐसा आएगा. प्लस नेक्स्ट विल बी गेटिंग p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy by dx. प्लीज चेक आउट द स्टेप्स. राइट हैंड साइड में हमने ब्रैकेट ओपन किया स्टूडेंट्स, तो दिस इंटू 1 is written over there and this into dy by dx is also written over there. It is not difficult to be understood anything. अभी वही सेम अपना प्रोसीजर dy by dx वाले टर्म एक साइड पे. तो लिखो क्या मिलेगा, therefore q by y into dy by dx. अब ये टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, इसके इक्वल टू में क्या आएगा, तो p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस this p by x will be shifted to the right hand side. Rule says dy by dx terms on one side and non dy by dx terms to the other side of equality. यही तो वर्किंग रूल है हमारा. ठीक है. Now what will happen? We can take dy by dx common from both the terms to the left hand side. तो देखो क्या मिलेगा, therefore this is nothing but q by y minus p plus q upon x plus y into dy by dx equal to right hand side remaining same. राइट साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा. नाउ वी टेक एलसीएम इन बोथ द ब्रैकेट्स, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस. एलसीएम दोनों साइड पे लेना है, बट एलसीएम लेने के साथ साथ हम ब्रैकेट भी ओपन करेंगे सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम. राइट डाउन देयरफॉर व्हाट टू हैपन, चलो आई विल राइट डाउन विद अ डिफरेंट कलर ताकि ये दोनों मिक्स ना हो जाए. तो देयरफॉर दिस q इनटू दिस, व्हाट विल दैट गिव अस, qx. अच्छा अभी मैं जरा देयरफॉर नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आएगा नहीं वो. q into this, तो qx plus qy minus this into this, तो minus py minus qy, minus will go to both of them, ठीक है ना, upon in the denominator it is y into bracket x plus y, और इसको पूरे एक ही ब्रैकेट में लिखो into dy by dx is already present. अभी LCM हमें राइट हैंड साइड में भी लेना है. We are supposed to take LCM on the right hand side also. ठीक है, तो this into this, so it is px plus qx minus px minus py upon in the denominator it is x plus y into x and the bracket closes. सिर्फ LCM ले रहे हैं हम directly. There is no rocket science in this. Okay, so now what is going to happen is you observe ये qy पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया यहाँ पे. ओके ये px पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया. तो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विद, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, qx माइनस py अपॉन y टाइम्स ऑफ x प्लस y into dy by dx. ठीक है ना, दिस इज होल into dy by dx. ये देयरफॉर हटा देता हूँ मैं.
bracket into dy by dx equal to, this is qx minus py upon, this is nothing but x plus y into x. ठीक है. Now I hope everyone must have written till here. यहाँ तक समझ में आ गया आपको procedure understood everyone? Yes sir. Okay, very good. तो अभी क्या करना है, आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ हियर itself. चलो मैं अभी ऊपर लिख देता हूँ इसका स्टेप. नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये दोनों टर्म्स ऊपर चले जाएंगे और ये वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज सो देयरफॉर, चलो आई राइट डाउन ओवर हियर, ऊपर बॉक्स में लिख देता हूँ मैं. तो dy by dx is further equal to what? So this is qx minus py. ठीक है, ये न्यूमरेटर में है. अब ये दोनों टर्म्स ऊपर चले जाएंगे. तो इट इज y into x plus y अपॉन, यहाँ पे क्या है, दिस टर्म विल कम टू द डिनोमिनेटर, ये टर्म नीचे आ जाएगा. तो इट इज qx minus py into, ठीक है, x into ब्रैकेट x plus y. इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो आप कैसे भी लिखो, x plus y into x लिखो या x into x plus y लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो आफ्टर दिस स्टेप प्लीज सी इट एट द, वहां पे लिखा है मैंने वो, ताकि ये प्रोसीजर आप पूरा वापस एक बार देख सको, इसलिए मैं रब नहीं कर रहा हूँ. अब क्या होगा देखो, ये qx minus py इसके साथ गया, ये x plus y इसके साथ गया. तो सी व्हाट इज लेफ्ट आउट, dy by dx is equal to y by x. तो लिख दो फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये बॉक्स को जरा मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे. So what is the final answer, students? The final answer is nothing but dy by dx is nothing but equal to y by x. Hence proof. Problem is over. Please make a note of this. Procedure important है, इसीलिए ये प्रॉब्लम का जो वेटेज है स्टूडेंट, it will be asked for 3 marks. हाँ लिखा हुआ है, चलो marks I have already written, it is for 3 marks. Very important problem है, बोर्ड्स में 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है ये एग्जाम्पल. ठीक है. नाउ व्हाट चेंजेस कैन बी मेड इन दिस, क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, so now I rub this up. Now instead of giving this question instead in this manner, अगर इसमें कुछ changes किए तो क्या हो सकते हैं, let me explain you. So if some changes are made, अभी वो क्या दिया है उसने, x raised to p into y raised to q. अभी एग्जाम में वो कैसे देगा, if I ask you if x raised to 4 into y raised to 3 is equal to x plus y raised to 7, then prove that dy by dx is equal to y by x. दे दिया मैंने आपको. अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया मैंने आपको, तो आप बोल नहीं सकते रहे सर ने हमको ये तो प्रॉब्लम करवाया ही नहीं, ये क्या है, यही तो है सेम प्रॉब्लम. उल्टा ये सिंपल एग्जांपल है, दिस इज मोर सिंपल देन दिस. इसमें तो नंबर्स है, numbers are present, so this example is much simpler than what we have already done. इसमें तो p plus q था, इसमें तो सीधा सीधा 7 दिया हुआ है. so these changes if they are made you should be able to do. तो ये जो दो पावर्स है वो यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे मिल जाते हैं. so if this kind of question is generated you should be able to do it yourself. पूरा सेम प्रोसीजर है, होल सेम प्रोसीजर, और इसके स्टेप्स इससे कम है. am I clear with this everyone? Yes sir. Okay, so please note down this problem. Yeah, इसको आप होमवर्क सेक्शन के लिए नोट डाउन कर लो. This is your homework. This is you will do it. X raised to 4 into y raised to 3 is equal to x plus y raised to 7. Prove that dy by dx is y by x. तो डिफरेंट पावर्स भी हो सकते हैं. अगर यहाँ पे 5 4 दिया तो यहाँ पे 9 देंगे.
यहाँ पे 5 6 दिया तो यहाँ पे 11 देंगे, एनी चेंज कैन बी मेड, इसलिए मैंने जनरल फॉर्मेट में उसको कर लिया है पहले ही। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस होमवर्क एग्जाम्पल। So please note down the next question that you can see on your screen. That is from homework unit. Unit 8 is your homework. Unit 8 का 5th question है and it's an important one. Important question है and 3 marks weightage है। चलो solution. Let's consider the given equation. So what is the given equation, students? It is nothing but sin y is equal to x into sin of a plus y. Now let's number this as equation 1. Now write down differentiating with respect to x. तो दोनों साइड पे d by dx आएगा, तो d by dx of sin y is equal to d by dx of x into sin of a plus y. चलो now apply u into v rule. अब मैं थोड़ा directly लिखूंगा. Okay. Now can anyone tell me what will be d by dx of sin y? We have done it earlier. Cos y into dy by dx. Absolutely. All of you are correct. तो cos y into dy by dx मिलेगा। अभी यहाँ पे हमें u into v rule अप्लाई करना है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई हैव शोन यू मेनी टाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx of sin of a plus y. तो sin of a plus y का डेरिवेटिव will be nothing but cos of a plus y into d by dx of a plus y. अभी ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली इसका डेरिवेटिव dy by dx मिलेगा, पर आपके रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने। sin fx is cos fx into f dash of x plus sin of a plus y remaining same, second function as it is, derivative of the first function, तो x का डेरिवेटिव 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? cos y into dy by dx remaining same, this is x into cos of a plus y into a का डेरिवेटिव is 0, y का डेरिवेटिव with respect to x, so this is into dy by dx and this is plus sin of a plus y. ठीक है, now whole this term will be shifted to the right left hand side. ये जो पूरा dy by dx वाला टर्म है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो अभी हमें क्या मिलेगा? देखो cos y into dy by dx minus x into cos of a plus y into dy by dx is nothing but equal to sin of a plus y remaining ठीक है। So please note down till here first of all everyone. चलो अभी क्या होगा? So now you observe on the left hand side dy by dx can be taken common. ठीक है ना? अब ये जो into 1 है वो जरा मैं into 1 थोड़ा रब कर देता हूँ because I will need space to write down. ठीक है, चलो now let us take dy by dx common from this. So when we take dy by dx common, so what do we get? लिखो cos y minus x into cos of a plus y, this will come into one bracket into dy by dx, and this is nothing but equal to sin of a plus y remaining same. ठीक है, अभी नो डाउट हमें ये पूरा टर्म नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाना है। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग होल दिस टर्म इन द डिनोमिनेटर, पहले ना ये वाले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी डू, सी वी नीड टू प्रूव दिस, हमें यहाँ तक पहुंचना है।
So now what we do, I replace the value of x. देखो ये जो प्रूव करना है, कहीं पे x दिख रहा है क्या आपको? Nowhere x is present. तो हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. किधर से मिलेगा x का वैल्यू? इक्वेशन 1 देखो. We will substitute this value of x from equation number 1. So write down next step. इसके बाद therefore square brackets cos y remaining same, x का value is nothing but what? Sin y upon sin of a plus y into cos of a plus y पहले से है हमारे पास, cos of a plus y into whole bracket dy by dx, and this is nothing but equal to sin of a plus y. Why? You write down the reason for your reference from equation number 1. I repeat once again. डिफरेंशिएट किया हमने, फिर ये x को हम रिप्लेस कर रहे हैं, कंपलसरी है. वी नीड टू प्रूव दैट. तो x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. नाउ लेट अस टेक एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेंगे, तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन. देयरफॉर व्हाट विल दिस बिकम? राइट डाउन. नाउ आई एम नॉट स्पीकिंग. आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड. एलसीएम लिया ब्रैकेट के अंदर. नाउ चेक आउट एंड टेल मी द होल न्यूमरेटर इज ऑफ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Sin of a minus b. परफेक्ट आंसर. साइन ऑफ a माइनस बी. देखो साइन a cos b माइनस cos a sin b. ठीक है. राइट ऑन. देयरफॉर आई जस्ट कंटिन्यू इट आउट ओवर हियर. ये स्टेप के बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है. तो देयरफॉर व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? तो साइन ऑफ a minus b, so it is a plus y minus y upon sin of a plus y into dy by dx is equal to sin of a plus y. मिल गया हमें, मतलब वो ऑलरेडी है. This is what we have got. Now y कैंसिल हो जाएगा, so we are left out with sin a. So just for your reference, this is nothing but sin a upon sin of a plus y into dy by dx is equal to sin of a plus y. अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so therefore dy by dx is further equal to, now sin of a plus y into sin of a plus y is nothing but sin square a plus y. ठीक है ना. ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, दिस इंटू दिस, साइन ऑफ ए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है. और ये जो साइन ए है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में. देखो प्रॉब्लम हो गया खत्म. प्रॉब्लम इज ओवर. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस स्टूडेंट कि हमने x को रिप्लेस किया. अभी बहुत सारे स्टूडेंट मुझको पूछते कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा x को ही रिप्लेस करना है. देखो ना, क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें कहीं पे x चाहिए ही नहीं, तो x एलिमिनेट होगा कैसे? तो x का वैल्यू हमें डालना पड़ेगा जो इक्वेशन दिया है. तो वी डू दैट एंड गेट द आंसर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. आई होप दिस प्रोसीजर इज अंडरस्टूड टू ऑल. Yes, sir. ओके, प्लीज नोट डाउन. So let's move on to the next question, student. Unit 8 का 9th वाला question. Now just pay attention. Now in this question, if you observe, अगर आप differentiate करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, in this problem, okay?
So what I was saying is, if you try to directly differentiate, this problem will become difficult. अगर आप log fx to the base a का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये जो फंक्शन है ना ये बहुत बड़ा है, तो log fx का फॉर्मूला फिर u upon v, unnecessary it is going to become very difficult. Okay, so this question का weightage, let me tell you, this is 2 to 3 marks. ठीक है, तो logarithmic differentiation से बहुत लेंदी हो जाएगा. Okay, if you try to do log of a by b, मतलब log a minus log b से करोगे तो भी वो थोड़े स्टेप्स उसके इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू हाउ मेनी स्टेप्स, बट नाउ व्हाट विल डू, विल नॉट डायरेक्टली डिफरेंशिएट, वी विल नॉट यूज दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम log of a by b का. हम ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सिंपल कर देंगे. So just write down the solution problem. It is different from the previous one. Previous one में हमने किसी में भी ऐसा नहीं किया है. Okay, तो चलो write down. Consider, write down this given equation. Log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 is equal to 2 given. हमने कंसिडर कर लिया. अब हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, we will apply the definition. So what we'll do, we'll convert the logarithmic form to the exponential form. So recollect what does the definition says. If a raised to x is equal to b, then x is equal to log b to the base a. Recollect, in 11th standard we have done this. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने आता है. तो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस इज, राइट डाउन, 10 raised to 2, 10 raised to 2 is nothing but equal to x cube minus y cube upon x cube plus y cube. Note down this definition for your reference. एग्जाम में ये रीजन नहीं लिखना है आपको, बट हाँ अभी आपके रेफरेंस के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो. Logarithmic form converted to the exponential form. Now what we do, we cross multiply. ठीक है, 10 square is 100, तो 100 into this, तो ये क्या हो जाएगा, 100 x cube plus 100 y cube is nothing but equal to x cube minus y cube. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इस प्रोसीजर से प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो जाता है, मतलब इट्स लाइक फॉर 2 मार्क्स, इतना इजी हो जाएगा एग्जाम्पल. नाउ वी डू द शिफ्टिंग ऑफ द टर्म. ये माइनस वाई क्यूब इधर आ जाएगा और ये 100 एक्स क्यूब उधर चला जाएगा. व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस वाई क्यूब टर्म ओवर हियर, तो 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा 101 वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स क्यूब. एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब इज माइनस 99 एक्स क्यूब, और ये 100 प्लस 1, तो ये 101 हो जाएगा. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये 101 भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99 बाय 101 इंटू एक्स क्यूब, ऐसा मिलेगा हमें. देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखो जो चाहिए हम उसके पास में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. सेम थिंग इज नॉट बीइंग डिराइव्ड, नो, ये चाहिए हमें. नाउ व्हाट वी डू, नाउ वी डिफरेंशिएट, वी डोंट हैव अ चॉइस, इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. so write down differentiating with respect to x. okay, so d by dx to be taken on both the sides of equality, so d by dx of y cube minus 99 upon 101 तो कांस्टेंट है, तो d by dx of x cube मिलेगा. Now quickly tell me derivative of y cube. 3y square into dy by dx. Absolutely, it is 3y square into dy by dx is equal to minus 99 by 101
एंड इसका डेरिवेटिव इज 3x²। ये 3 गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू -99x² अपॉन 101y² हो गया। प्रॉब्लम इज ओवर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये y² नीचे चला जाएगा 101 के साथ। तो वी हैव मेड द प्रॉब्लम सिंपल। अभी स्टूडेंट पूछते कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना है। लेके देखो आप होमवर्क सेक्शन के लिए, देखो आता है क्या आंसर एंड हाउ लेंदियर इट बिकम्स। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, एग्जाम में जब हम प्रॉब्लम करते हैं, अब जब पता है कि ऐसा खाने का है तो क्यों ऐसा खाने का, अब वो कैसे मालूम पड़ेगा ऐसा ही खाने का है। हाउ डू वी कम टू नो? बाय प्रैक्टिस ना, रोज अपन ऐसा ही खाते हैं, कभी ऐसा खाते हैं क्या? नहीं खाते। So it is by practice of examples we come to know that how the examples are to be done in exam. तभी तो टाइम बचेगा, अदरवाइज waste the time in exam it becomes difficult. तो एकदम इजी प्रोसीजर है। लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया और वो प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट ऐसा था। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके देखो, सॉल्व इट एज होमवर्क सेक्शन एंड रिवर्ट मी विच इज द इजियर वे। इजीएस्ट वे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। दिस प्रॉब्लम इज ओवर। तो कंसेप्ट इज नॉट गेट ओवर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। अब कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So please make a note till here. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी आर गोइंग टू रिक्वायर 12th स्टैंडर्ड में, एग्जाम में तो आने वाला है सब, और उसके बाद JEE एंट्रेंस में, JEE के एंट्रेंस में और बाकी के जो एंट्रेंस है उसमें भी ये सारे कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। कंसेप्चुअली वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रॉब्लम चेंज हो गया, टेंशन नहीं लेने का, कंसेप्ट थोड़ी चेंज होने वाला है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आई एम डूइंग फॉर योर रेफरेंस। ओके, प्लीज मेक अ नोट।